میپکو کی طرف سے ہر سال تنصیبات کی مد میں اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن ملتان جیسے بڑے شہر میں یہ پیسے کہیں بھی نہیں لگتے دکھائی دیتے، جو آئے روز بڑے حادثات کا باعث بن جاتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین، ہر سال میپکو کی طرف سے تنصیبات کی مد میں اربوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، لیکن ملتان جیسے بڑے شہر میں یہ پیسے کہیں بھی لگے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، آئے روز بڑے بڑے حادثات بھی باعث بن رہے ہیں۔ ملتان شہر میں بجلی کی لٹکتی تاریں اور کھمبوں سے جھولتے میٹر میپکو حکام کا منہ چڑھانے لگے۔ میپکو کی طرف سے ہر سال تنصیبات کی بہتری پر اربوں روپے خرچ کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اور صورتحال اس سے الٹ ہے۔ میپکو رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال بھی تنصیبات کی مد میں 20 ارب روپے سے زائد کا خرچہ کیا گیا، مگر ملتان کے ہر چوک گلی محلے میں الجھتی اور لٹکتی ہوئی تاریں شارٹ سرکٹ کا باعث بن رہی ہیں۔ نہ صرف مال بلکہ قیمتی جانیں بھی نگل جاتی ہیں۔ جی دیکھیں جی، وابڈا وہ محکمہ ہے جو اس وقت عوام کا خون چوس رہا ہے اور بے حساب چوس رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے پیچھے یہ موت کا سوداگر 24 گھنٹے ہمارے سر پہ کھڑا ہے۔ صارفین نے سوال اٹھایا ہے کہ میپکو اربوں روپے کہاں خرچ کرتا ہے۔ شہر میں ہر جگہ میپکو تنصیبات کا برا حال ہے۔ کاروباری حضرات اضافی ٹیکس دے کر بھی سہولیات سے محروم ہیں۔ 3 حادثے ہو چکے ہیں جی، کروڑوں روپے کی 3 دکانیں جل چکی ہیں اسی تاروں کی وجہ سے، اور کروڑوں روپے کا مال جو ہے نا وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ گزشتہ رات بھی حسین آگاہی میں بجلی کے شارٹ سرکٹ سے مارکیٹ میں لگنے والی آگ سے لاکھوں روپے کا سامان جل گیا تھا۔ ملتان کے مرکزی مقام گھنٹہ گھر پر اس وقت بجلی کی جھولتی تاریں اور لٹکتے کھمبے بجلی ترسیل کار کمپنیوں کی پالیسیز پر منہ چڑھاتے دکھائی دے رہے ہیں، جو عوام سے بھاری بھرکم ٹیکس لے کر اس ترسیل کے نظام کو ٹھیک کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ محسن ملک، ملتان۔ ادھر ڈی جی خان میں بجلی کی بے ہنگم لٹکتی ہوئی تاریں شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی ہیں۔ مین رانی بازار سمیت مختلف علاقوں میں بجلی کی لٹکتی تاریں کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈیرہ غازی خان میں بجلی کی بے ہنگم لٹکتی ہوئی تاریں شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی ہیں۔ مین رانی بازار سمیت مختلف علاقوں میں بجلی کی لٹکتی تاریں کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ میپکو حکام کی غفلت یا بے حسی، ڈیرہ غازی خان کے مین رانی بازار اور شہزاد کالونی میں بجلی کے کھمبوں سے لٹکتی تاروں سے شہری خوفزدہ ہیں۔ بے ہنگم لٹکتی تاریں کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہاں پہ، مقصد ہے کہ بچے بڑے گزرتے ہیں، یہ تاریں ننگی پڑی ہیں۔ شہزاد کالونی میں کیا پورے ڈی جی خان میں یہی حال ہوا پڑا ہے، تو انتظامیہ سے یہ گزارش ہے کہ یہ خصوصی توجہ دیں، ان کا کوئی مسبب الاسباب کریں۔ شہزاد کالونی کے مکینوں کا کہنا تھا کہ میپکو انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث پول پر لگے میٹرز اور تاریں کسی کی بھی جان لے سکتی ہیں۔ بجلی کی ان لٹکتی ہوئی تاروں کی وجہ سے پہلے بھی حادثات ہو چکے ہیں۔ آپ ڈالے کو آدھا یار انہیں کو صحیح کرو، آدھا پیچھے سا کوئی ایکسیڈنٹ ایس ڈی او سامان ہی نہیں دینا، حالانکہ پیچھے سامان بھی ملتا ہے، ویچ چھڑن ملی بگت کر کے کھوندن۔ شہریوں نے کمشنر ڈی جی خان اور میپکو حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر بھر میں بجلی کی لٹکتی تاروں اور جھولتے میٹرز کو فوری طور پر درست کیا جائے۔ کیمرامین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ ملتان کے علاقے گلشن مہر کالونی کا واحد فلٹریشن پلانٹ کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا۔ فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہونے کے باعث علاقہ مکین پانی کے صاف پانی سے محروم ہو گئے ہیں۔ غفلت یا بے حسی، ملتان کے علاقے گلشن مہر کالونی کا واحد فلٹریشن پلانٹ بھی غیر فعال، اہل علاقہ پینے کے صاف پانی سے محروم۔ فلٹریشن پلانٹ کی عمارت دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے کھنڈر بن چکی ہے۔ شہریوں کے مطابق فلٹریشن پلانٹ ایک لمبے عرصے سے بند ہے۔ انتظامیہ کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کی بجلی تک بحال نہیں کی گئی۔ فلٹر خراب ہے، پانی چل دینے پہ خراب ہے، ایسا پانی کتوں بھرا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہونے کی وجہ سے وہ آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع انتظامیہ جلد از جلد فلٹریشن پلانٹ کو فعال کرے۔ کیمرامین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ ادھر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کے ناڈلا چوک اور ملحقہ سڑک کو بہتر بنانے کے دعوے ٹھس ہو گئے۔ سڑک پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں، پودے بھی موجود نہیں۔ مزید جانتے ہیں علی ریاض کی اس رپورٹ میں۔ ملتان شہر کی شاہراہوں کو خوبصورت بنانے کے لیے پی ایچ اے کا کوئی بھی دعویٰ پورا نہ ہوا۔ ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ناڈلا چوک اور ملحقہ سڑک کی حالت بہتر نہ ہو سکی۔ سڑک پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، گرین بیلٹ پر پودے بھی موجود نہیں۔ سب سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر درخت لگائیں گے، گرینری وغیرہ ہوگی، اچھا ماحول بن جائے گا،
तो हम देख ही गए हैं, अभी तक तो फिलहाल कोई इस तरह की वो नहीं हुई। उल्टा आप देखेंगे साइड पे बिल्कुल गंदगी है, बीमारियां वगैरह फैल गई हैं। शहरियों का कहना था कि 100 से ज्यादा दरख्त लगाने का कहा गया, मगर यहाँ तो कुछ भी मौजूद नहीं। मुनासिब देखभाल न होने के बायस पहले से मौजूद दरख्त भी सूख चुके हैं। इंतजामिया ने वादा किया था कि हम यहाँ पौधे लगाएंगे, लेकिन इधर पौधे लगाने का कोई निज़ाम ही नहीं है, पौधे हैं ही नहीं किसी भी जगह, सारे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहरियों ने PHA हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द नाडला चौक और मुहल्का सड़क की हालत को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। जमात इस्लामी मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहती है, सूदी निज़ाम यहूदी निज़ाम है। अल्लाह ने हमें एक दिन भी हुकूमत दी तो हम सूदी निज़ाम को ख़त्म कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मदरसा जामिल उलूम मुल्तान में खिताब, बोले हमें तारीख से सबक लेना चाहिए, हमें कभी दुश्मन ने शिकस्त नहीं दी। ये इस्तिलाह मैंने 7वीं क्लास में सुनी थी कि सूद मुफरत किया है और सूद मुरकब किया है। ये तो 8वीं क्लास में इस्लामी जमीयत तलबा में दाखिल हुआ और हमने सैयद मौदूदी को पढ़ा और इस्लाम का निज़ाम मईशत पढ़ा, तो मालूम हुआ कि सूद तो हराम नहीं, बल्कि सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके स्कूल के बच्चों को सूद पढ़ाया जाता है, सूद सिखाया जाता है, बल्कि एक लिहाज से अल्लाह के साथ जंग के लिए तैयार किया जाता है, तो हम कैसे अपनी नई नस्ल को एक मुजाहिद नस्ल बना सकते हैं? आपका निज़ाम तालीम आपके बच्चों को देता है, फिर कैसे आप गिला कर सकते हैं कि बाजार में खालिस दूध नहीं है, खालिस दवाई नहीं है, खालिस मिसाला नहीं है, खालिस चीनी है। नया सूबा नहीं बनना, जमात इस्लामी पुराने सूबे को बहाल करवाना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले बहावलपुर के अवाम के हकूक का ख्याल नहीं रखा गया। जिनका पाकिस्तान पर बड़े एहसानात थे, यहाँ के रियासत के नवाब ने पाकिस्तान के खातिर बड़े कुर्बानियां दी और पाकिस्तान के हर हुक्मरान ने नवाब के बाद नवाब के साथ भी बड़े वादे किए कि हम इस रियासत को तरक्की देंगे, इसको हम सुबह बहाल करेंगे। लेकिन आज 74 साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ के लोग उस सूबे की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया और जितने ममालिक इटमी पावर बने हैं, उन्होंने इटमी सलाहियत के हुसूल के लिए सैकड़ों साल जद्दोजहद की, लेकिन वो अजीम काम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। दूसरी जानिब मुल्तान के मज़ारात पर ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स 8 माह से तनख्वाह से महरूम हैं। चूल्हे ठंडे पड़ चुके, कई माह से घरों का किराया तक नहीं दिया। गार्ड का महकमा औकाफ के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान के मज़ारात पर ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स 8 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, कई माह से घरों का किराया नहीं दिया। गार्ड्स का महकमा औकाफ के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान के 4 बड़े मज़ारात पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड्स महकमा औकाफ के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सिक्योरिटी मुलाजमीन का कहना है कि 8 माह से तनख्वाहें नहीं दी गईं, चूल्हे बंद पड़े हैं, आने जाने का किराया भी नहीं रहा, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, गरीब बंदे हैं, परदेसी बंदे हैं, गुजारा नहीं हो रहा। 8,000 तनख्वाह है, काम बहुत ज्यादा है। महकमा औकाफ वाले कंपनी के सपोर्ट करते हैं, कंपनी वाले महकमा औकाफ की तरफ। हम जाए तो किधर जाए? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बहुत मुश्किल से गुजारा, किराया नहीं है आने के लिए। सुबह जल्दी आए, डिप्टियों पे जल्दी पहुंचे, हमारे लिए बहुत मसले आते हैं। बच्चों की फीसों तक तंग हुए पड़े हैं। मामूली तनख्वाह पर गुजारा करने वालों को भी तनख्वाह से महरूम रखा जा रहा है। गार्ड कहते हैं हमारी तनख्वाह ज्यादा नहीं, सिर्फ 8,000 है, वो भी नहीं दी जा रही। कई माह से मकान का किराया तक अदा ना कर सके। 8-8 महीने 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, क्या करें, कहाँ जाएं? किराए पे मकान है हमारा, मजबूरी है, हम रोते हैं इसी वजह से। किसके आगे रोएं? 6 माह हो गए, सैलरी हमें नहीं मिली, हम कहाँ जाएं? हम रेंट पे रहते हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है,
कोई ना कोई रीज़न बना के हमें टाल दिया जाता है, ना चेक दे रहे हैं। इनके जो अपने महकमा औकाफ के बंदे हैं वो 16,000 तनख्वाह और उनको हर यकम के यकम दे देते हैं। चंद रुपयों पर नौकरी करने वाले इन खिदमत गुजारों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। जुल्म का शिकार सिक्योरिटी गार्ड्स खान साहब से रहम की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में फिर इजाफा। मुर्गी का गोश्त 2 दिनों में 18 रुपए फी किलो महंगा होकर 357 रुपए में फरोख्त होने लगा है। रहीम यार खान में मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मुर्गी का गोश्त जो कि 339 रुपए में फरोख्त हो रहा था, 18 रुपए फी किलो से 357 रुपए में फरोख्त होने लगा है। दुकानदार कहते हैं कि मुर्गी की फीड महंगी होने से ब्रायलर गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ है। आइंदा दिनों में मुर्गी की डिमांड बढ़ने से गोश्त मजीद महंगा हो सकता है। दूसरी जानिब महंगाई के सताई अवाम ने हुकूमत से मुर्गी के गोश्त की कीमतों में फौरी कमी लाने का मुतालबा कर दिया है। नाज़रीन, गरीब जाए तो कहां जाए? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफे के बाद खानेवाल में साइकिल की मांग बढ़ी तो दुकानदारों ने साइकिल की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। पेट्रोल मजीद महंगा हुआ तो महंगाई के मारे शहरी पेट्रोल फ्री सवारी साइकिल खरीदने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना था कि अब मोटरसाइकिल चलाना भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है, इसलिए साइकिल खरीदने आए हैं ताकि कामकाज पर जाने के लिए साइकिल इस्तेमाल कर सकें। दूसरी तरफ साइकिल की मांग बढ़ते ही इसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। साइकिल भी अब 15 से 20 हजार रुपए की हो गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की नाअहली ने आम आदमी को साइकिल चलाने पर मजबूर कर दिया है। मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में डेंगू के वार जारी हैं। निश्तर अस्पताल में डेंगू के 16 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में ज़ेरे इलाज 13 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। तर्जुमान निश्तर अस्पताल के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 8 नए मरीज दाखिल किए गए, जबकि 8 को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। डेंगू में मुब्तला मरीजों का ताल्लुक जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से है। तर्जुमान निश्तर अस्पताल का मजीद कहना था कि अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 24 बेड्स मुख्तस किए गए, जबकि ICU में 4 बेड्स रखे गए। मुल्तान में शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। गैर मयारी पानी और ग़िज़ा के इस्तेमाल की वजह से बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पताल में जा पहुंची है। मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 241 मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें से 66 मरीज निश्तर अस्पताल, 96 चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स और 42 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लाए गए, जबकि टाउन्स अस्पतालों में गैस्ट्रो के 37 मरीज लाए गए हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे। गैस्ट्रो से बचने के लिए खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें और म्यारी खानों का इस्तेमाल करें। मुल्तान में पुलिस थाना गुलगश्त ने लापता 13 साला मोहम्मद तलहा को तलाश करके लवाहिकीन के हवाले कर दिया। चंद रोज कबल तलहा के चचा अब्दुल खालिक की तरफ से अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में पुलिस थाना गुलगश्त ने लापता 13 साला मोहम्मद तलहा को तलाश करके लवाहिकीन के हवाले कर दिया है। चंद रोज कबल तलहा के चचा अब्दुल खालिक की तरफ से अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। थाना गुलगश्त ने लापता 13 साला तलहा को तलाश कर लिया है। पुलिस ने बच्चे को तलाश करके लवाहिकीन के हवाले भी कर दिया है। चंद रोज कबल तलहा के चचा ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में थाना गुलगश्त ने लापता 13 साला तलहा को तलाश कर लिया है। पुलिस ने बच्चे को तलाश करके उसके लवाहिकीन के हवाले कर दिया है। चंद रोज कबल तलहा के चचा ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। पंजाब हाईवे पेट्रोल अब शाहराहों के साथ जुराइम को कंट्रोल करने के लिए भी खदमात सर अंजाम देगी। अपनी हदूद में रेस्क्यू 15 पर पेट्रोलिंग पुलिस इमरजेंसी रिस्पॉन्ड का काम करेगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मुनक़िदा मीटिंग में अफसरान को हिदायत भी जारी कर दी गई। पंजाब हाईवे पेट्रोल के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मुनक़िदा मीटिंग में जिला भर के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर DSP पेट्रोलिंग हाफिज गुलाम फरीद खान का कहना था कि हाईवे पेट्रोलिंग को अपनी हदूद में होने वाले जराइम की इत्तला पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स करने के अहकामात मिले हैं। उनका मजीद कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस अब शाहराह को महफूज बनाने के साथ साथ जराइम की रोकथाम के लिए बाकायदा काम करेगी और मुतल्लिका हुकाम को आगाह भी करेगी। जनूबी पंजाब में अमन और अमान के लिए इश्तिहारी और अदालती मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गुज़श्ता माह 15 रोज में 3000 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर मजीद।
जनूबी पंजाब में अमन व अमान के लिए पुलिस सरगर्म हो गई। इश्तिहारी और मफरूर अदालती मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गईं। गुज़िश्ता माह में 15 रोज़ा मुहिम के दौरान 3000 से ज्यादा इश्तिहारी और अदालती मफरूर मुजरिम धर लिए गए। मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। 3000 के करीब इश्तिहारी, जिनमें इंतहाई ख़तरनाक इश्तिहारी भी थे, और उसके अलावा जो कोर्ट एब्सकॉन्डर हैं, जिनको हम मफरूर कहते हैं, वो भी हैं, और कुछ मिलिट्री डिजर्टर्स हैं। तो ये रफली 3000 हमने 15 दिनों में किए। एडिशनल आईजी जफर इकबाल अवान का कहना है कि आदि मुजरिमान अपने इलाकों के अलावा दीगर इजला में भी क्राइम करते हैं, जिससे अमन व अमान बर्बाद होता है। इश्तिहारी मुलजिमान डकैती, चोरी और कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मतलूब हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी और दूसरे डिवीजन में भी नेटवर्क्स इनके होते हैं, तो ये क्राइम करते रहते हैं, तो इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा ये 3000 तो तकरीबन हमने कानून की गिरफ्त में इनको लेके आए हैं। बाकी भी जो बचे हुए हैं उन पे भी इंशाल्लाह हम भरपूर मेहनत करते रहें। इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान डिवीजन समेत तमाम इजला में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अक्टूबर के दौरान अहम कामयाबियां मिलने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। ज़िला इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम कमिश्नर ऑफिस रजा खान में वज़ीर-ए-आज़म का खिताब बराह रास्त दिखाया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंजूर और दीगर ने बराह रास्त खिताब सुना है। PTI के हुमायूं रजा, रुकिया रमजान और दीगर भी उस मौका पर शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। जिला इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम कमिश्नर ऑफिस में खिताब बराह रास्त दिखाया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन और दीगर ने बराह रास्त खिताब सुना। PTI के अख़वान हुमायूं रजा, रुकिया रमजान और दीगर भी उस मौका पर शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म के सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अक़ीदत भरे खिताब ने शुरका के दिल मोह लिए। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब इस्लामाबाद में हुआ, जबकि जनूबी पंजाब में भी सुना गया। ज़िला इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम कमिश्नर ऑफिस में खिताब बराह रास्त दिखाया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन और दीगर ने बराह रास्त खिताब सुना है। PTI के अख़वान हुमायूं रजा, रुकिया रमजान और दीगर ओहदेदार भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म के सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अक़ीदत भरे खिताब ने शुरका के दिल मोह लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में ये खिताब किया है। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब हुआ। गदागरी पर बात करें नाज़रीन। गदागरी एक माशरती नासूर है। स्पेशल कोऑर्डिनेटर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद इन एक्शन मुल्तान में बच्चों से गदागरी के खिलाफ रेस्क्यू ऑपरेशन और आगाही मुहिम जारी कर दी। गुज़श्ता हफ्ते बजरिया रेस्क्यू ऑपरेशन 34 बेकारी बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लिया गया था। गदागरी एक माशरती नासूर है। स्पेशल कोऑर्डिनेटर और चेयरपर्सन सारा असलम इन एक्शन बच्चों से गदागरी के खिलाफ रेस्क्यू ऑपरेशन में आगाही मुहिम जारी है। रोजाना की बुनियाद पर बेकारी बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते बजरिया रेस्क्यू ऑपरेशन 34 बेकारी बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया। अवाम और नास में गदागरी की रोकथाम और चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 की प्रोमोशन जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। गदागरी एक मुआशरती नासूर है। स्पेशल कोऑर्डिनेटर और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा असलम इन एक्शन मुल्तान में बच्चों से गदागरी के खिलाफ रेस्क्यू ऑपरेशन और आगाही मुहिम जारी है। गुज़श्ता हफ्ते बजरिया रेस्क्यू ऑपरेशन 34 बेकारी बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। संडे को फंडे बनाने के लिए शहरी किला कोहना कासिम बाग पहुंच गए। नन्हे बच्चे अपने वालिदैन के साथ छुट्टी के दिन को एंजॉय करते रहे तो कोई किला कोहना पर मौजूद तारीखी आर्ट गैलरी देखने के लिए पहुंच गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। संडे को फंडे बनाने के लिए मुल्तानियों ने किया किला कोहना कासिम बाग का रुख, जहां नन्हे बच्चों ने पार्क में मुख्तलिफ खेल खेलते हुए वक्त गुजारा, साथ साथ खूब आइसक्रीम भी खाई। ऐसे में कुछ बच्चे झूले लेकर ही दिल को खुश करते नजर आए। संडे का दिन है और किला देखने आए
और दमदमा देखने के लिए और घूमने के लिए, और बहुत खुशी हुई हम मुल्तान आए हुए। नन्हे बच्चों का कहना था कि छुट्टी के दिन घर पर बोर हो रहे थे, इसलिए घर वालों के साथ घूमने आए हैं। दूसरी तरफ किला कोना कासिम बाग पर दूसरे शहरों से आए लोग भी नजर आए। बच्चों ने कहा आज छुट्टी है, तो ये कह रहे थे कि किताबों में हमने देखा था कि किला, ये शाह शमस दरबार, ये सारी चीजें, तो मैंने कहा आज चलो थोड़ा सा ये कोरोना का कम हो गया है तो आपको घुमा के ले आते हैं। तो इसलिए ये सारे जिद कर रहे थे कि हमें पापा छुट्टी है, तो आज मैं इनको घुमाने के लिए ले आया हूँ। दूसरे शहरों से आए लोगों का कहना था कि मुल्तान की तारीख जानने के लिए किले से अच्छा कोई मकाम नहीं। यहाँ आर्ट गैलरी से तारीख जानने को मिलती है और दमदमा से पूरा शहर नजर आता है। कैमरामैन सुफियान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।